Assalamualaikum all. I'm Dr. Amna Najam, FCPS Gynae and OBS. On behalf of MedExam Expert, I welcome you all to this orientation session. हम यहाँ पे आपसे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे about how the FCPS exam is being conducted, what are the tricks and tips to get through that exam, what are the tricks and tips to pass and to make a specific outcome, a successful outcome out of this short 2 to 3 months. ठीक है, थोड़े टाइम में ज़्यादा outcome कैसे लेना है, we'll be discussing that with you. And Dr. Sumaira Ejaz, inshallah, will be discussing the highlights of our course, which we are offering for the written. And that course is being started from the 20th of May 2020 till your written exams. So let's start. Am I audible to all? Okay. As you all know, that MedExam is an international organization, and we conduct various preparatory courses for FCPS as well as international exams like MRCOG and IMM and FCPS Part 1 as well. So I myself, Dr. Amna Najam and Dr. Sumaira Ejaz will be your mentors and instructors regarding FCPS Gynae, both written as well as we'll be conducting your Viva exams as well. Okay, so let's be familiarized with how the FCPS exam goes and how the written exam is. Most of you will be already knowing how the written exam is being conducted. The tentative dates for the upcoming exam is 24th and 25th of August 2021. As you all know, that the CPSP has divided the participants and the students into 4 groups. On 24th of August, 2 groups will be taking the exam, and 25th of August, next 2 groups will be taking the exam. Of course, your written examination will be, papers will be different. All the 4 groups will be having different papers, but some questions, MCQs are, you know, some of them are repeated again and again. So what will be the pattern of your CPSP written exam? That will be divided into 2 papers. Paper 1 will be almost 2.5 hours paper, and that will be 100 MCQs. Of course, but for 100 MCQs you will be getting almost 150 minutes. So time management is not a big deal in this written examination. So उसकी हमने फिक्र नहीं करनी कि हमें एक MCQ half minute में या 1 minute में लाजमी करना है, because time हमारे पास ample होता है. इसी तरह से half an hour की break के बाद paper 2 होगा. Paper 2 will be also will be comprising of 100 MCQs, और उसके अंदर भी 2.5 hours will be getting for that. And so think of an MCQ, take your time to understand what they are asking you, and take your time to click on the right option. और time management इतना problem नहीं होता अगर आपकी practice अच्छी है तो, ठीक है. So अब study करनी कैसे है? 3 months है हमारे पास almost तकरीबन, ठीक है, written exam के लिए. Tentative dates हैं, COVID की वजह से situation that is so fluctuant, you all know that. लेकिन tentative dates जो हैं 24th और 25th हैं. तो how to go about it? हमने करना कैसे है इसको? First of all, you have to, you know, organize yourself. Without organizing yourself, you cannot go through any exam, or CPSP exam तो बिल्कुल नहीं हो सकता FCPS उसके बगैर. So, you know, all of you know that CPSP is giving you a consultant degree, all right? And they will not give you out of empathy. You have to snatch it out. You have to work hard for it. And it's not a simple side dish on your menu. It has to be a main menu on your table. So for that, you have to organize yourself. So behave like a consultant in every aspect of your life, even at your home.
ठीक है, यू हैव टू, सबसे पहले तो घर से बात शुरू होती है. यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर होम. Even if you're doing a job, you have to organize that your kids who will be taking care of your home, your kids and job while you are being studying, while you are studying. Okay, so for that you need to get help from the from household help. How can you do that? Get to चाहे वो आपकी mother in law हैं, चाहे वो आपकी mother हैं, चाहे वो that can be any maid or anyone who has to take care of your kids, your household work. Because if you keep on worrying about your household, your kids and how the house is clean and your job, you're not going to get through that exam. This is not, I'm again saying कि आप दो चीजें side by side नहीं चला सकते. You cannot do that कि आप मैं job भी कर लूँ, मैं kids को भी देख लूँ, मैं घर भी मेरा साफ neat and clean हो, spick and span हो, और मैं FCPS exam भी pass कर लूँ. So you have to get yourself some help, household help. ठीक है. उसके बाद secondarily क्या करना, कैसे हेल्प लेनी, कैसे. आई नो बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जो कि फैमिलीज में बहुत बच्चों में घिरे, और कॉमनली उनकी एक ये हमारी वो होती है, एक्सक्यूज ये होता है कि बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं. यू नो व्हेन मैं पढ़ने आती हूँ तो छोटा बेटा है वो आ जाता है और वो मुझे पढ़ने नहीं देता. आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. ये याद रखें, एक 6 months 3 or 4 months की आपकी एफर्ट वर्सेस साल हर साल की मल्टीपल अटेम्प्ट्स और मल्टीपल डिप्रेशन, जो कि आपको मतलब एक दफा अगली दफा उससे अगली दफा, मतलब it becomes a vicious circle and you keep on taking the attempts and the depression keeps on getting adding up. So it's better to have a household help, और उसको 3 or 4 months के लिए ऑर्गेनाइज करें अपने आप को. और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि you have to move out of your house for 3 months and leave the house totally. No, divide your time. For example, अगर आप 6 hours अपने पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, तो for that 6 hours you should not be worrying about your kids. And when you are spending quality time with your kids, then you should not be worrying about your studies. Your mind needs some relaxment as well. So अपने hours को organize करें, divide करें time को, और उसके हिसाब से आप अपने मतलब आप help लें बच्चों के लिए और घर के लिए. ठीक है. Similarly, if you are doing a job, then you must take at least leave of 1 month or 20 days in the last 20 days or before written exam from your job, in order to get yourself more organized. क्योंकि अभी अगर आप 6 hours की स्टडी कर रहे हैं तो लास्ट 1 month में आपको एटलीस्ट 10 to 12 hours की स्टडी चाहिए. ठीक है. For that you must leave your job, you must take some leave from your job at least 1 month or 20 days. लेकिन उस 1 month और 20 days में तैयारी नहीं होगी, इसमें रिविजन आपने करनी होगी, तैयारी अभी करनी है. सेकेंड टिप क्या है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ करने की, कि आपने एक स्टडी पार्टनर ढूंढना है. ये एग्जाम इस किस्म का नहीं है कि आप अकेले पढ़ते रहें, अकेले टकरे मारते रहें, अकेले कोशिश करते रहें. बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स हैं, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल है. यू कैन नॉट डू इट अलोन. इट्स बेटर टू हैव अ स्टडी पार्टनर. व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, आपका स्टडी पार्टनर आपको बूस्ट देता है, आपको पुश करता है, एंड बोथ ऑफ यू, आप दो दिमाग मिलकर सोचते हैं, तो यू डू थिंग्स इन अ बेटर वे. सो गेट योरसेल्फ अ स्टडी पार्टनर. Thirdly, discipline yourself. How it is different from organizing yourself? By disciplining yourself, I mean that you have to make a schedule. You have to make a study schedule. For example, मैं इतने टाइम के अंदर ये मॉड्यूल में करना चाहती हूँ, और इतने टाइम के अंदर मुझे like 1 month के अंदर मुझे whole अपनी written books cover करनी है. Make a schedule और stick to that schedule. अगर आपने एक टॉपिक सोचा है कि आज के दिन में मैंने इस मॉड्यूल का एक चैप्टर खत्म करना है, तो चाहे रात के 12 बज जाए, आपने डिटर्मिनेशन के साथ करना है कि मैंने अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि ये टाइम जो मैंने डिसाइड किया है, मैंने इसमें ये पूरा करना है. एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. हम आपके लेक्चर्स लेंगे, आपको सारा पूरा टॉपिक वाइज उस चीज को मतलब एक कंसाइज वे में आपको छोटा करके लेक्चर में बताएंगे, ताकि आपको 6-7 बुक्स एक टॉपिक को पढ़ने के लिए ना वेस्ट करनी पड़े. वील हेल्प यू आउट इन दैट सेंस. लेकिन आपकी हमें कॉपरेशन उसके लिए चाहिए कि आपने उस शेड्यूल को जो हम आपको देंगे उस पर स्टिक करना है. ठीक है. अपने आप से सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको चाहिए कि आप बाय द एंड ऑफ द डे जो टॉपिक आपने सोचा है वो मैंने करके हटना है. तो एक शेड्यूल बनाएं अपने लिए और शेड्यूल को स्टिक करें. देन स्टडी हार्ड. वर्किंग हार्ड का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन स्टडी स्मार्टली. व्हाट डू आई मीन बाय स्टडी स्मार्टली? आपके पास EBM है, शॉज है, बुक्स एंड बुक्स हैं, 6-7 तो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी MCQ बुक्स. आई विल बी डिस्कसिंग विद यू लेटर ऑन. ठीक है. अब वो सब के सब पढ़ते हैं जब आप हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में एक जम्बल्ड अप नॉलेज होती है. ठीक है. आपने एक बुक भी पढ़ ली, दूसरी बुक भी पढ़ ली,
एक रीडिंग से कभी भी आपके माइंड के अंदर वो सारी नॉलेज इतनी नहीं होती इस तरह की कि आप उसको एक बेटर वे में एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए उसको बाहर ला सके। और एक दफा की रीडिंग में कभी भी चीजें याद नहीं रहती। सो यू हैव टू स्टडी स्मार्टली। एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ, उसके हिसाब से आपने स्टडी करनी है। नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास गाइडलाइंस हैं, टॉग आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, एमसीक्यू बुक्स हैं। विल बी गिविंग यू लेक्चर्स एज वेल। एग्जाम मटेरियल हम भी आपको देंगे। वो सब के सब पढ़ के आपका सारा माइंड जो है इनिशियली जम्बल्ड अप होती है नॉलेज। आपने क्या करना होता है, स्टडी स्मार्टली का क्या मतलब है कि आपने एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। नॉलेज आपको इन लाइफ बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी, लेकिन वो सारी की सारी नॉलेज आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प आउट नहीं करेगी जब तक आप एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करेंगे कि एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज को कैसे पिक करना है, इस सारी नॉलेज में से चेरी पिक करके मैंने इस एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है। और ऑफ कोर्स विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दैट सेंस एज वेल। सो स्मार्टली स्टडी करनी है, एक रैंडम स्टडी से कोई फायदा नहीं है। आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा। सिर्फ जो नॉलेज गेन करने से, एक चैप्टर पढ़ लेने से कभी भी यू नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द एमसीक्यूज जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज के मुतालिक होते हैं। उस नॉलेज को कैसे आपने एमसीक्यू की नॉलेज में कन्वर्ट करना है अपने आप को, कैसे उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी चाहिए होती है। एंड ऑफ कोर्स विल बी गाइडिंग यू फॉर दैट। ओके, लेट्स this is all about key to success, ठीक है। And let's discuss something about how will you organize yourself, or how will you ये जो 3 months आपके पास रह गए हैं, so how will you patronize yourself कि इन 3 months के अंदर आप maximum output कैसे लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट स्टडी की बात कर रही हूँ। आपने बहुत सारे स्टिकी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। योर बाथरूम, योर लिविंग रूम, योर रूम, योर wherever you are moving about should be full of sticky notes रिगार्डिंग उसमें क्या आप कर सकते हैं, रिगार्डिंग इंसिडेंसेस, रिगार्डिंग क्लासिफिकेशंस, फ्लो चार्ट्स, ठीक है। ये जो स्मार्टली आपने पढ़ना है कि बजाय इसके पूरा पूरा चैप्टर यू नॉट गोइंग टू रिकॉल दैट होल चैप्टर, लेकिन आपने उसी का कोई फ्लो चार्ट, उसी की कोई क्लासिफिकेशन का चार्ट्स अगर आपने उसके स्टिकी नोट्स बनाए होंगे, दैट विल हेल्प यू आउट। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी खास टिप थी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो ये थी कि आई मेड अ रजिस्टर इन विच आई नोटेड डाउन द पॉइंट्स। पूरी की पूरी एक बुक को छापा नहीं मारना। आपने क्या करना है, व्हेनेवर यू आर डूइंग एन एमसीक्यू बुक, फॉर एग्जांपल आगे हम डिस्कस करते हैं, लेंज है, प्री टेस्ट है, मुख्तलिफ एमसीक्यू बुक्स हैं, उनमें वो नॉलेज जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं है, आपको लगता है कि एडिशनल नॉलेज है, कोई आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया किसी बुक से, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन में आपने देखा कि एडिशनल नॉलेज है जो कि मुझे गाइडलाइन से, मुझे टेक्स्ट बुक से नहीं मिल रही, ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी व्हिच आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट। उस एडिशनल नॉलेज को सिंपल एक पॉइंट में, 1 पॉइंट, जैसे बुलेट्स नहीं होती उस तरह से आप एक रजिस्टर बनाते जाएं, उसपे वो पॉइंट्स लिखते जाएं जो कि एडिशनल नॉलेज आपको एमसीक्यू बुक्स के अंदर मिली, ठीक है। उससे होगा क्या कि इन द एंड आपके पास, और उस रजिस्टर को आप स्केड्यूल वाइज, उसको सेशन वाइज, उस रजिस्टर को आप मॉड्यूल वाइज डिवाइड करें। रैंडम उसके अंदर एमसीक्यू रैंडम पॉइंट्स ना हो कि आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूरा रजिस्टर खोल रहे हैं कि वो पॉइंट मैंने कहाँ लिखा था। उस रजिस्टर को आप ऑर्गेनाइज करें मॉड्यूल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, एक सेक्शन आप बनाएं मैटरनल मेडिसिन का, एक सेक्शन आप बनाएं फीटल मेडिसिन का, ठीक है। इस तरह सेक्शंस बने हुए, एंटीनेटल केयर का एक सेक्शन बनाओ, उसके अंदर आप उससे रिलेटेड जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपकी किताबों में नहीं है, जो ईबीएम में नहीं है, जो ड्यूहर्ट्स वगैरह में नहीं लिखी हुई बात, आपको नई बात पता लगी एमसीक्यू बुक की एक्सप्लेनेशन से, वो अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिख लिए। इससे फायदा क्या होगा कि इन द एंड जब आप आखिरी दिनों में, जब आपके पास 6 एमसीक्यू बुक्स हैं और 6 टेक्स्ट बुक्स हैं, सो व्हाट्स यू गोना रिवाइज इन दोज 10 days, आप 5 पेपर अपने रिवाइज करेंगे और आप अपना वो रजिस्टर रिवाइज करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको इनिशियली टेक्स्ट बुक से नहीं मिली थी। टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ ली, आपके पास एक बेसिक नॉलेज आ गई, ठीक है। अब जो ऊपर की नॉलेज आपको मिली एमसीक्यू बुक से, वो आपने एक रजिस्टर में फिल कर ली। वो रजिस्टर आपने आखिरी 5-6 दिनों में पढ़ के चले जाना है। वो आपका एक किस्म का निचोड़ है सारी एमसीक्यू बुक्स का। जो 6-7 एमसीक्यू बुक्स हैं, आपको आखिर में यही समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इनमें से कौन सी बुक को रिवाइज करूं। इतना ज्यादा मटेरियल है, मैं इसमें से क्या रिवाइज करूं आखिरी एक हफ्ते के अंदर। सो अगर आपके पास इस तरह का एक पॉइंट्स का रजिस्टर बना होगा जिसमें एडिशनल पॉइंट्स होंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपने गेन की थी, उस रजिस्टर को आपने आखिर में एक दफा रीड आउट करके चले जाना है, और दैट विल बी इनफ कि आपको वो सारी एमसीक्यू 6-7 बुक्स जो हैं उनका निचोड़ होगा, वो आपको उस वक्त इजीली रिवाइज हो जाएगा आपसे, ठीक है।
ओके, अब आपके पास रह गए हैं 2.5 ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है, जो FCPS की एग्जाम की तैयारी होती है ना, वो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स तो मिनिमम आपको चाहिए होते हैं टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। उसमें पहले 2 महीनों में आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक को कम से कम एक दफा फर्स्ट रीडिंग जरूर दे देनी है। और आई एम श्योर कि अब तक जो लोग सितंबर अगस्त की टाइम में दे रहे हैं, वो अब तक कम से कम एक रीडिंग रिटर्न की जरूर दे टेक्स्ट की जरूर दे चुके होंगे। ठीक है, सो वो वाली एक रीडिंग का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि आपको एक दफा पढ़ने से वो सब का सब मटेरियल दोबारा याद रहेगा, नेवर। आप कभी भी अपने आप को इस चीज में टेंशन मत दें कि मैंने सारा पढ़ा था और मैंने नेक्स्ट टाइम बुक खोली तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा। कभी भी रिकॉल नहीं होता एक दफा की रीडिंग से। फर्स्ट रीडिंग का फायदा ये होता है कि आपने एक, कोई बात है कि एक जंबल्ड नॉलेज, बहुत ढेर सारी नॉलेज कलेक्ट की, उसमें से आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया, यूज हाईलाइटर्स, व्हाटएवर इज द योर वे ऑफ हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। आप लिख के याद करना चाहते हैं आप लिख के याद कर लें, लेकिन अब इस वक्त लास्ट 3 मंथ्स में लिखने का उस तरह से टाइम नहीं है, पूरे की पूरी टेक्स्ट बुक को नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। ठीक है, सो आप बुक को आपने पढ़ लिया है, आप उसको एक दफा हाईलाइटेड थिंग्स को आप दोबारा पढ़ लें, फिर उस बुक को आप एक दफा साइड पे रख दें। आपको टेंशन बहुत होती है कि मैं बुक्स को रिवाइज नहीं कर रही, लेकिन जब आप आगे MCQs पढ़ेंगे, हमारे लेक्चर अटेंड करेंगे, वो आपकी टेक्स्ट की रिवीजन ही हो रही होगी, जो कि आप ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। लास्ट 3 मंथ्स को कैसे डिवाइड करना है? लास्ट 3 मंथ्स को ऐसे डिवाइड करना है कि आपने उनमें 6 MCQ की बुक्स हैं, 5 MCQ की बुक्स हैं, 6 7 भी आप कर सकते हैं, 5 बेसिक MCQ की बुक्स हैं, वो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ स्लाइड। वो आपने जो है ना, वो MCQ बुक्स आपने रीड आउट करनी है, उनमें से MCQ सॉल्व करने हैं, और रिमेंबर ये MCQ बुक्स एटलीस्ट 3 टाइम्स करनी है। नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिकली डूइंग द MCQs। नॉलेज आपके पास एक बेसलाइन है, ठीक है। हमारा यहाँ पे मेड एग्जाम के अंदर भी MCQ का पूल है, विल बी हेल्पिंग यू आउट। हम वीकली आपको पूल भी देंगे, वो भी डॉक्टर सुमेरा आपको गाइड करेंगे कि हम कोर्स में आपको कैसे कैसे MCQs करवाएंगे। ठीक है, नॉलेज आपके पास बेसिक एक दफा है, जो कि आपने EBM, ड्यूहर्ट्स और शॉज से टेक्स्ट बुक से एक दफा पढ़ ली है। ठीक है, those who haven't read these books completely, don't worry, we are here to help you out। हम आपके लेक्चर्स लेंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो टेक्स्ट को कवर करेंगे, और वो लेक्चर्स हमारे एक किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव एक जो है ना, वो उसकी समझ लें एक तरह का निचोड़ होगा आपकी बुक्स का, आपकी गाइडलाइंस का और एडिशनल इंफॉर्मेशन का। सो इफ यू लिसन टू दोज लेक्चर्स, आपकी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, अभी आपने 2 महीनों को कैसे डिवाइड करना है? इन 2 महीनों में आपने अपनी MCQ बुक्स करनी है। कौन कौन सी MCQ बुक्स हैं? रेंज है, प्री टेस्ट है, या आपने यकीनन IMM के अंदर भी की होंगी, ये करनी है। मास्टरिंग बुक्स है, और अमेंडा जॉन्स है जो MRCOG की बुक है। ये 5 तो आपकी मैंडेटरी हैं। ठीक है, इनके बगैर तो गुजारा नहीं है। ये आपने एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है। उसके अलावा जो आप और एंजियोसाइजर भी, ठीक है। जो एडिशनल ऑप्शनल है, एक गुप्ता के नाम से बुक है, वो भी आप कर सकते हो, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन वो ऑप्शनल है, मतलब वो आपको बेसिकली उससे एज इट इज क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी MCQ प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। और एक एंड्रयू पीटरसन भी बुक है, ये भी MRCOG की बुक है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करोगे तो भी ओके, नहीं कर सकते, नहीं टाइम है अभी, तो इसको बेशक आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपकी वही बात है कि जितनी आप MCQ बुक्स करते हैं, उतनी आपकी प्रैक्टिस बेसिकली MCQ अटेम्प्ट करने की हो रही होती है ज्यादा। ठीक है, सो बेसिक बुक आपकी प्री टेस्ट, लेंज, अमेंडा जॉन्स, मास्टरिंग और एंजियोसाइजर है। आपने इन 2 महीने के अंदर इन MCQ बुक्स को अलॉन्ग विद द लेक्चर्स विच वी आर शेयरिंग विद यू, वो आपने MCQ बुक्स को एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है। ऑब्वियसली कैसे देनी है, कैसे क्विकली आप कर सकते हो, या फर्स्ट रीडिंग तो पूरी पूरी दोगे, हर MCQ को सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉरी, उसमें जो MCQ आपको नहीं आया, ठीक है, उस MCQ को आप मार्क कर लो, और नेक्स्ट रीडिंग के अंदर, और बल्कि थर्ड रीडिंग के अंदर आप ये करो कि आप जो मार्क्ड MCQ थे, जो आपको नहीं आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो आपने निशान लगाए हुए थे, ठीक है, सिर्फ उन MCQs को रिवाइज करो। जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी MCQ आ गया है, उसको आखिरी थर्ड रीडिंग के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सो इन दिस वे स्मार्टली पढ़ते हुए आप इन 5 बुक्स को 2 मंथ्स के अंदर कवर कर सकते हैं। 5-5 दिन, 4-4 दिन एक बुक को दें, होली सोली पूरा पूरा दिन लगा कर इसको पढ़ें। और अगेन थर्ड रीडिंग के अंदर मैं बता रही हूँ कि पूरी बुक दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स आपको, जो MCQs आपको नहीं आए थे, वो आप सिर्फ मार्क जो आपने किए हुए थे वो थर्ड रीडिंग में आपने करने हैं। और साथ वो जो रजिस्टर मैंने आपको बताया था कि जो आपको एडिशनल पॉइंट्स कहाँ से मिले थे, जो MCQ की एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई है उन बुक्स के अंदर, उन एक्सप्लेनेशन से जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो आपने अपने रजिस्टर के अंदर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, प्लीज डोंट राइट इन पैराग्राफ्स,
लंबा लंबा टेक्स्ट हमें नहीं पढ़ना, टाइम नहीं है हमारे पास लंबा टेक्स्ट पढ़ने का इस वक्त, ठीक है। तो आपने बुलेट्स की फॉर्म में एक फॉर एग्जांपल इंसिडेंस है, ये बात एक लिख ली आपने, बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स का 10% इंसिडेंस है, इस तरह की छोटी छोटी बातें आपने जो है ना वो स्पेसिफिकली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो आपने साइट पर अपनी रजिस्टर के अंदर लिखी भी है। थर्ड रीडिंग करते हुए एमसीक्यू बुक्स की आपने सिर्फ अपने मार्क्ड एमसीक्यू करने हैं जो आपको नहीं आए थे, और वो रजिस्टर साथ देखना है। उसी के साथ आपने सेकंड मंथ के एंड पर पास पेपर्स करने हैं, ठीक है, एक दफा फर्स्ट रीडिंग करनी है। वो हम आपको करवाएंगे भी, साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे भी, लेकिन वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। यकीन जाने कोई और आपको आंसर एक दफा किसी चीज का बता दे, आप रट्टा लगा लें, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट अनलेस नटिल के आप अपनी माइंड स्टॉर्मिंग करके एक एमसीक्यू के आंसर तक पहुंचे। वो एमसीक्यू आपको नहीं आता, लगता है कि गलत हो गया, देन एक्सप्लेनेशन के लिए ऑब्वियसली वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, लेकिन सॉल्व एक दफा आप खुद करें चीजों को। कोई और आपको पका पकाया आंसर्स दे दे, वो एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली एमसीक्यू वैसा रिपीट नहीं होता, वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, और जिन लोगों ने रटा लगाया होता है उनको लगता है एमसीक्यू तो वही आए थे, मैंने पढ़े हुए भी थे, पता नहीं क्यों मेरा पास नहीं हुआ। थोड़ा बहुत सीपीएसपी उनको 2-4 लाइनें आगे पीछे करके उसकी ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं। सो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो पास पेपर्स हैं वो खुद से सॉल्व करने हैं। प्लीज सॉल्व पास पेपर्स किसी से मत लें, खुद से एक अटेम्प्ट जरूर करें सॉल्व करने की। और ऑब्वियसली जो आपके आंसर्स गलत होंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, हम आपको प्रॉपर्ली बाद में करवाएंगे भी। अब आ गया आखिरी एक मंथ, उसमें आपने क्या करना है। आखिरी मंथ के अंदर आपने पास पेपर्स रिवाइज करने हैं वंस अगेन, क्योंकि पास पेपर्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एमसीक्यूज, मोर और लेस मिलते जुलते क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होके वो रिपीट होते होते हैं नेक्स्ट टाइम। तो आपने आखिरी एक मंथ में पास पेपर्स करने हैं। आपने अपना रजिस्टर जो मैंने आपको बताया है पॉइंट्स वाला, उसको रिवाइज करना है। और आपने क्विकली, अगर आप जो इस तरह के हमारे लेक्चर्स अपलोडेड होंगे, इफ यू वांट टू हैव लुक ऑन दोज लेक्चर्स जो आपको पॉइंट्स वीक लगते हैं, आप वो एक दफा सुन लें, देख लें, लेकिन आखिरी एक महीना आपकी प्रैक्टिस का होना चाहिए। जितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे, बेसिकली आपका माइंड की प्रोसेसिंग जल्दी होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। 6-7 लाइनों का एक एमसीक्यू है लंबा सा, आपका माइंड उसको पढ़ेगा, इंफॉर्मेशन गेन करेगा, फिर पिक करेगा कि इस एमसीक्यू के अंदर क्या इंफॉर्मेशन पूछी हुई है मुझसे, और फिर वो उसको सॉल्व करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जितनी आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की होगी, ये प्रोसेस क्विकली हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि इन 6 लाइनों में एक्चुअल काम की बात इस एक लाइन में जो मुझसे पूछी हुई है। ऑलवेज रिमेंबर, एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आखिरी लाइन के ऊपर हमेशा बहुत जोर देना है कि उसने पूछा हुआ क्या है। What is the most likely diagnosis? What is the most common diagnosis, common cause of this? Common, most likely, most, आखिर पूछा हुआ exactly पूछा हुआ क्या है? What investigations would you do for it? उसमें ऑप्शंस में हो सकता है, अगर किसी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज नहीं बने हुए तो उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर हो सकता है 1-2 ऑप्शंस इन्वेस्टिगेशंस की हो और 1-2 ऑप्शंस जो हो मैनेजमेंट की हो कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। अगर एमसीक्यू आपको कह रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल यू डू दैट, तो बाकी आपने जो मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आते। तो आपने एमसीक्यू की आखिरी लाइन पर हमेशा जरूर गौर करना है कि पूछ क्या रहा है वो। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज पूछ रहा है, कॉमन का वर्ड यूज कर रहा है, मोस्ट लाइकली है, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछ रहा है, या व्हाट इज द बेटर मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। ओवरऑल मैनेजमेंट हमें पता होती है पेशेंट की क्या होनी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो यूजुअली फर्क होता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इससे अगला स्टेप हम फलाना वाला इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, वैसे हमने टोटली पेशेंट की एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी पे जाना है। एक ओवरऑल मैनेजमेंट में मैंने फाइनली पेशेंट की हिस्टेक्टोमी करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने नेक्स्ट स्टेप पे फलाना वाला अल्ट्रासाउंड करा। सो आपने ये देखना है कि एमसीक्यू की आखिरी लाइन पूछ क्या रही है। वो आपसे बेस्ट मैनेजमेंट पूछ रही है या वो आपसे पूछ रही है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। अगर वो नेक्स्ट स्टेप पूछ रही है तो आपने टीएचपीएसओ की तरफ नहीं जाना, आपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है, ठीक है। सो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, बहुत ज्यादा आपको पता हो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी एकदम से प्रोसेसिंग आपकी माइंड की तेज हुई भी हो। जब वो तभी होगी जब आप डेली के आप 10-20 एमसीक्यूज डेली के करेंगे, इवन 50-50 एमसीक्यूज, आपकी आखिर में स्पीड इतनी बन जाती है कि आप एक एक एमसीक्यू की बुक को 3 या 4 दिन में खत्म कर लेते हैं आराम से, अगर आपने पूरी बुक भी पढ़नी हो तो इतनी स्पीड आपकी बन जाती है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम अपने कोर्स के अंदर भी आपको नए एमसीक्यूज भी बताएंगे जो कि इन बुक्स के अलावा होंगे, जो पास पेपर्स के अलावा होंगे, जस्ट टू गेट योरसेल्फ अ बेटर नॉलेज एंड जस्ट टू कीप योरसेल्फ इन प्रैक्टिस फॉर दैट प्रोसेसिंग ऑफ योर माइंड, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एफसीपीएस में रिटन एग्जाम जो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी पहली अटेम्प्ट है,
ये किस तरह से आपका एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जाम सीपीएसपी पैटर्न क्या है उसमें। ये जो मेरे आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, इसी किस्म की मिलती जुलती स्क्रीन आपको सीपीएसपी के सॉफ्टवेयर आपको देगा। स्टार्ट आपका जब टाइम होगा, आपका स्टार्ट में आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और आपकी एक जो लॉगिन आपको दिया जाता है वो आप लॉगिन करेंगे। आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो गए, जब आपको कहा जाएगा नाउ यू शुड स्टार्ट का बटन आप दबाएंगे तो आपका एमसीक्यूज इस तरह से आपकी स्क्रीन पे अपीयर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपीयर होगा, उसके नीचे यूजुअली 5 ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में 3 ऑप्शंस डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है। उसके वही जिस तरह मैंने आपको बताया, लास्ट लाइन पे गौर करना है एक्चुअली पूछ क्या रहा है, ठीक है। ऑप्शन जो आपके जहन में आती है वो आप, अगर आप तो इफ यू आर डेड श्योर देन यू शुड अटेम्प्ट इट। अगर आप नीचे देखें तो आपके पास एक ऑप्शन होती है स्किप की। अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर आप स्किप कर सकते हैं, या प्रीवियस के ऊपर आप नहीं जा सकते। सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन प्रीवियस की लिखी हुई है, सीपीएसपी के एग्जाम के अंदर आप प्रीवियस एमसीक्यू पे नहीं जा सकते। इफ यू सबमिट द एमसीक्यू, जहाँ पे स्किप की ऑप्शन यहाँ दी हुई है ना, नीचे अगर आप रेड वाला कॉलम देखें, स्किप की ऑप्शन दी हुई है, तो उसके साथ आपको सॉरी प्रीवियस की ऑप्शन की जगह यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन दी होती है। सो वंस यू सबमिट दैट एमसीक्यू विल नॉट अपीयर ऑन योर स्क्रीन अगेन। सो सबमिट ओनली इफ यू आर डेड श्योर अबाउट द आंसर। बहुत सोच लें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टाइम की लिमिट आपको परेशान नहीं करती, आपके पास एम्पल टाइम होता है। यू कैन टेक एटलीस्ट वन मिनट बहुत होता है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने में, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है पहले, ब्रेनस्टॉर्मिंग की और प्रोसेसिंग ऑफ योर माइंड की प्रैक्टिस अच्छी की हुई है। सो 1 मिनट काफी होता है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन स्टिल 1 मिनट से भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम है आपके पास। सो अब सबमिट सोच समझ के करें। वंस यू हैव सबमिटेड, आपका एमसीक्यू दोबारा आपके स्क्रीन पर अपीयर नहीं होगा, लेकिन आपको अगर थोड़ी एम्बिग्विटी है, यू कैन skip that MCQ। skipped MCQs जो है वो अपर टॉप कॉर्नर के ऊपर शो हो जाते हैं कि आपने इतनों के आंसर किए। जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आप देखें 100 में से 0 फिलहाल आंसर हुआ हुआ है। आप जो आंसर कर चुके हैं वो आप लिखे हुए आएंगे, और साथ उसके आएंगे जो आपने स्किप किए हुए हैं। जितने आपने टोटल नंबर ऑफ स्किप किए होंगे वो आपके ऑप्शन टोटल ऊपर लिखी हुई आएगी। सो एट द एंड ऑफ योर पेपर जो आपने छोड़ दिए 6-7 MCQ, वो आपके एंड पे रीअपीयर होना शुरू करेंगे। एक ये भी टिप है कि आपके एंड पे स्किप वाली ऑप्शन 20, 30, 40 स्किप नहीं करने, इतना ज्यादा स्किप नहीं करना। वो फिर इतना ज्यादा भी आपके पास टाइम नहीं होता, और इतना ज्यादा भी आप लोग जो है ना वो उसको स्किप्ड एमसीक्यूज को फिर आप दोबारा सोच नहीं सकते। इतने ज्यादा भी नहीं कैजुअल लेना उस चीज को। लेकिन बेहतर है कि आपके पास यू डेड श्योर, आप पता है आपको एमसीक्यू, आपको क्वाइट यू आर क्वाइट श्योर अबाउट इट, तो आपने अटेम्प्ट कर लिया। और स्किप सिर्फ वो करें जिनका आपको बिल्कुल क्लू नहीं समझ आ रहा और आपको लग रहा है कि अभी इस वक्त मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एमसीक्यूज हैं। और वो आपके इन द एंड यूजुअली 10-12 से ज्यादा कोशिश करें कि ना हो आपकी, आप मेजोरिटी ऑफ द एमसीक्यूज आप पहले वो में अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। कॉर्नर पे टाइम भी लिखा हुआ होता है, कितना टाइम रह गया, यूजुअली मतलब बैकलॉग चल रही होती है, टाइम लेफ्ट लिखा हुआ होता है, टाइम कितना रह गया आपके पास। तो उस हिसाब से आपके पास टाइम एम्पल होता है। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो 2.5 घंटे नहीं लगते एग्जाम के उसके अंदर। यूजुअली आप तकरीबन 1-1.5 घंटे में फारिग हो जाते हैं। बहुत ही हो गया तो चलो, बहुत सोच सोच के किया तो 2 घंटे, मतलब आधा पौना घंटा पहले आप फारिग हो जाते हैं। आई होप दैट हेल्प यू आउट। डॉक्टर सुमेरा एजाज को मैं सेशन हैंड ओवर करती हूँ। टिप्स एंड ट्रिप्स यही हैं, विल बी हेल्पिंग यू आउट थ्रू आउट आवर कोर्स, ठीक है। डॉक्टर सुमेरा एजाज विल बी गाइडिंग यू कि हम कोर्स कैसे करवाएंगे, व्हाई आवर कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्सेज इन द मार्केट, और एग्जाम कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। कोर्स में हम आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे इस सारे प्रोसेस में, दैट इज ओवर टू डॉक्टर सुमेरा एजाज। Okay, thank you so much, Dr. Amna. And again, welcome all of you on the behalf of the MedExam team. I'm Dr. Sumaira Ijaz. I have done my MBBS and then FCPS OB-GYN, and then I'm also MD. I have done my USMLE, and I'm just looking for a fellowship further, inshallah ta'ala, here in the US. अब देखिए, जो हम जितनी बातें किए हैं, I second Dr. Amna on each and everything. ठीक है, उन्होंने आपको एक बहुत प्रिसाइज वे में सारी बातें बहुत डिटेल बता दी हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने जो है कैसे वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और हमारे कोर्स के जो आउटलाइंस हैं वो क्या क्या है। दिस इज विद द मेडएग्जाम टीम। हमने लास्ट ईयर जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, लास्ट ईयर जुलाई में 2020 में ड्यूरिंग द कोविड सीजन। दैट वाज आवर फर्स्ट सेशन है, और दिस इज गोइंग टू बी और थर्ड वन। हम ये थर्ड रिटर्न का लॉन्ग कोर्स कर रहे हैं, सेकेंड वाज इन दिसंबर, और अभी जो है ये हमारा थर्ड वन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार जितना फीडबैक मिला था, जो हमने आइडिया इंट्रोड्यूस कराने का एक
मेरी सोच थी इसके बारे में, I really got a very good feedback from my students. और उनका ये था कि the idea was we are the first one who are going to introduce the concept of the conceptual study. मैंने ऑब्जर्व किया while as a resident और while as a teaching the medical student कि जितने भी हमारे रेजिडेंट होते हैं हमारी डेफिशिएंसी क्या होती है. Being a female, you got married, you have a lot of responsibilities. आपका घर फीमेल, आपकी पढ़ाई बहुत पीछे रह जाती है. MBBS के बाद most of us we do not study your basics. लेकिन जब FCPS का एग्जाम आता है तो FCPS के एग्जाम में वो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आपका जो वाइवा होता है चाहे रिटर्न होता है, they ask combination of basics and clinical. और प्रीवियसली अगर आपको पिछले 2-3 सालों से पता हो, अब सारे मेडिकल स्कूल में मॉड्यूलर सिस्टम इन्वॉल्व हो गया अब इंटीग्रेटेड का, कि आपने जो सिस्टम पढ़ना है उसी की आपने एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, देन उसकी फार्माकोलॉजी और उसके बाद उसके क्लिनिकल्स पढ़ने हैं. So this is the basically idea which I studied at the same way. और मैं ये चाह रही थी कि ये मुझे I have been successful in that, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. And then when you are being a resident, being an SR या R4 जो हो, अपने राउंड्स करवा रहे होते हो तो अपने जूनियर्स को आपने सिखाना होता है, तो आपको भी बहुत हेल्पफुल होता है. क्योंकि FCPS का एग्जाम आपने सिर्फ रिटर्न नहीं पास करना, आप मेक श्योर करें कि आपने दोनों चीजें करनी है इन द फर्स्ट गो इंशाल्लाह ताला. तो मेरा पर्सनल सबको सजेशन ये होती है कि R4 इज योर बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. आप अपना जो है वो स्टार्ट कर दें अपनी प्रेपरेशन. जैसे डॉक्टर आमना ने कहा 6 महीने आपके लिए बहुत है, 6 मंथ्स में यू शुड गिव एम्पल टाइम, एंड देन इफ नॉट देन आपकी 2 मंथ्स में करके उसके बाद आपकी 3 रीड्स मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है. So अब हम how we can help you to get your preparation done in a better way. तो उसके लिए मैं आपके साथ बात करूंगी अपनी कोर्स आउटलाइन के बारे में, हमारा फॉर्मेटिंग क्या होगी, हम लोग आप लोगों को टीचिंग मेथड्स क्या क्या होंगे और हम आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं. इसके अलावा आपके असिस्टेंट स्टडी ग्रुप्स क्या होते हैं. बाकी जितनी डॉक्टर हमने आप लोगों को बातें की कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, टाइम अपने आप को दें और उसके बाद अपने आप को फोकस करें एंड टारगेट करें कि नहीं मुझे आई हैव टू गो थ्रू माय नेक्स्ट एग्जाम इन अ फर्स्ट गो इंशाल्लाह ताला. ठीक है. तो हमारे और कोर्स आउटलाइन में बेसिकली हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. द फर्स्ट वन इज माय थ्योरेटिकल, कि आपकी थ्योरी आ जाएगी जिसमें आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की आपको इसके लिए बुक्स की लिस्ट भी मिलेंगी. उसमें भी बताया जाएगा कौन सा टॉपिक आपने कहाँ से करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक्स है उसी को हम रखेंगे. ठीक है. जिसमें आपकी ड्यूहर्स है और ईवीएम आ जाती है. फिर उसके बाद जो MCQs बुक्स डॉक्टर आमना ने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं उनको पढ़ना कैसे है, स्केड्यूल कैसे करना है, और देन फाइनली ऑब्वियसली ठीक है जी, नॉट 100% लेकिन आपके जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पूल अवेलेबल है इन द मार्केट और व्हाटएवर सो वहाँ पे अवेलेबल है, उसको हम कैसे डिस्कस करें. ठीक है जी. ओके. तो अब आपने करना क्या है कि आपने इन तीनों को इंटीग्रेट करना है. अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज करते हुए MCQs सॉल्व कैसे करना है. 2 बहुत अच्छी टिप्स डॉक्टर आमना ने आपको बताई हैं कि जब भी क्वेश्चन करें सबसे पहले देखिए उसकी पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी. वो आई जो और वाइवा के केस में भी और MCQs में भी. और उसके बाद की जो लास्ट लाइन होती है ना, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज next, what is the initial management, how you will manage this patient further. So these are the 2 very key words in the whole clinical vignette. ठीक है. तो आपको क्लिनिकल एज वेल एज आपको थ्योरेटिकली जज कर रहे होते हैं. ठीक है. अब अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आई डिजाइन दिस रिटन कोर्स एज अ मॉड्यूलर करिकुलम. मॉड्यूल क्या होता है कि उसमें हमने जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं. उन मॉड्यूल्स में दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो उससे आपका भी पेस बना रहेगा, आप भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आपकी भी एक जो है वो एक अटेंशन डेफिसिट नहीं होगा और अटेंशन रहेगी कि मैंने करना है. उसमें क्या है कि आप सबसे पहले अपनी रीडिंग करोगे बुक्स के साथ ड्यू ऑर्डर से लिए. उसके बाद आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, ठीक है, इसलिए गायनिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनफर्टिलिटी, यूरिन इनकॉन्टिनेंस के, प्रोलैप्स के, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट के लाइव सेशंस होंगे. यू विल बी इंटरैक्टिंग विद अस. और उसके बाद जितने काइंड ऑफ सेकंड इम्पॉर्टेंट या उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, बट दे आर वेरी सिमिलर टू दैट कि आपको उसमें टीच किया जा रहा होगा. दे आर नॉट जस्ट ओनली के आपको एक रटाया जो है वो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी डिजाइन अ मॉडल इन अ वे कि उसमें भी आपकी प्रॉपर टीचिंग स्टाइल में आपकी सारी प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं.
they're more combination of your native language, that is English and Urdu together, ताकि आपकी जो हम आपकी comprehensive और आपकी understanding बेहतर बनवाना चाह रहे हैं वो आपकी बेहतर हो सके, ठीक है। उसके बाद हर मॉड्यूल के एंड में यानी आपने रीडिंग की सब्जेक्ट की, उसके बाद आपका ऑनलाइन लाइव सेशन थे, 1 वीक का मॉड्यूल है यूजुअली, ठीक है। उसके बाद आपका मिनी क्विज होगा, जो ही आपका संडे को इज योर ऑफ डे, संडे को आप लोग का एक मिनी क्विज होगा 25 to 30 MCQs का, इट विल बी योर काइंड ऑफ अ मिनी एग्जाम, ठीक है। उसके बाद उनकी क्वेश्चंस की जो क्वेरीज हैं आप लोगों के जो हमने असिस्टिंग आपके व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें जो है यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन वट एवर यू हैव अ क्वेरीज, कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंगली ये बनता था मैम, कैन यू जस्ट, और if needed तो we can have a very short live session with that if on the demand of the students, ठीक है। या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर ले क्विकली, या जब भी मेरा लाइव सेशन होगा तो हम 5 मिनट्स उसको देखें तो हम उसमें वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी, ठीक है ना। सो अगेन जैसे अभी आपको डॉक्टर आमना ने कहा था कि आपने अपना क्लिनिकल नॉलेज अप्लाई करना है MCQ अटेम्प्ट करते हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और बिलीव मी जब आपकी सेकंड रीड हो जाती है ना, क्लोज योर बुक एंड अपने आप से टॉपिक को रिवाइज करें। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि पी प्रॉम है तो प्री प्रॉम के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, अच्छा पेशेंट पी प्रॉम के साथ है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, मैं ट्रीटमेंट क्या, आपको ऑब्वियसली 100% तो नहीं याद होगा, लेकिन वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी अच्छी हो जाती है उस तरह से कि आपको MCQs अटेम्प्ट करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारे लाइव टॉक सेशंस होंगे एट द एंड ऑफ द, तो सबसे अच्छी और खूबसूरत मजे की बात यह है कि यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर ऑप्स एंड गायनी मॉक एग्जाम 100 MCQs का। जो ही आपका ऑप्स का हमारा कोर्स खत्म होगा, आपके 100 MCQs के मॉक एग्जाम होगा अलग से ऑप्स का, फिर उसके बाद फॉलोड बाय गायनेकोलॉजी है और गायनी का आपका उसमें मॉड्यूल हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको स्केड्यूल क्या मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा सिमिलर, आई डोंट नो इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट फॉरवर्ड, अच्छा जी, ये आपको स्क्रीन, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ साइन अप होंगे उनको जो है अपना स्टडी मटेरियल मिलेगा, इसके अलावा उनको अपने प्रॉपर स्केड्यूल्स मिलेंगे, उसके अंदर मेंशन होगा कि आपकी लेक्चर का डे क्या है, डेट क्या है, डे क्या है, वेदर इज गोइंग टू बी लाइव सेशन और जो है वीडियो लेक्चर होगा, उसके टॉपिक का नाम हाईलाइटेड होगा और जो भी आपका मेंटर ये सेशंस ले रहा है उसका होगा। आइडियली हमने अपने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस तरह किया हुआ है कि 1 मेंटर अल्टरनेटली में है डॉक्टर आमना, बस एवरी वीक अल्टरनेटली हम आपकी सेशंस लेंगे और इम्पोर्टेंट के लिए हम आप उनके साथ लाइव डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। दिस इज अ सैंपल, आपका ये देखें एक्सक्यूज मी, कि अगर वीक खत्म हो रहा है एंड में ये गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपका यूजुअली संडेज पे वी जस्ट डिजाइन इन अ वे कि हम संडेज के ऊपर आप लोगों को टेस्ट अपलोड कर देते हैं, दैट्स योर डे, यू टेक रेस्ट, डू योर टेस्ट, व्हाटएवर you want to do, come back on Monday, and then whether Monday usually you're going to have live sessions, and then afterwards then end of the session, that is about 3 to 4 weeks, when you're going to end up in the gynecology, you are just going to have a big mock exam, okay. Then after this big mock exam, the new thing which is med exam has been they are introducing is that they are going to introduce a CPSP mimicking mock exam, ठीक है। उसमें आपको क्या नजर आएगा, उसमें आपको जो भी स्लाइड डॉक्टर आमना ने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें था कि जिस तरह आपका CPSP का मॉक एग्जाम चल रहा है, जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है आपको हम उसके ऊपर मॉक एग्जाम करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो, प्रैक्टिस बेहतर हो और आप लोग जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो था हमारे कोर्स की आउटलाइन है कि हम आपको थ्योरेटिकली MCQs पास्ट पेपर्स की इंटीग्रेशन के थ्रू करवाएंगे और ए मेन पर्पस इज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसेप्चुअल स्टडी, ठीक है ना, हाउ टू इंटीग्रेट योर बेसिक नॉलेज और द बेसिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर MBBS नॉलेज विद योर क्लिनिकल नॉलेज। एंड आई हैव सीन दैट इज जो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स, उनको यही प्रॉब्लम होता है कि बेसिक्स बहुत वीक होते हैं एंड देन जब एग्जाम में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि आप बेसिक्स पे लेवल पे बताओ। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन में यूरिक एसिड की क्या पैथोफिजियोलॉजी, व्हाई यूरिक एसिड इज हाई, हाइपरटेंशन की इटसेल्फ पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सो व्हेन वी डिड नॉट स्टडी इन डिटेल, तो हमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वी आर अनएबल टू आंसर दैट सिंपल क्वेश्चन। इवन यूरिन एनालिसिस के ऊपर बात आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं तो यू आर अनएबल टू आंसर, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक्सक्यूज मी
पर्पस था हमारे एग्जाम का, ये सारी वेबिनार का, एंड आई थिंक आई एम डन एट माय बिहाफ एंड आई हैव डिटेल। May I add little thing? हमारी आपका माइक डॉक्टर सुमेरा एजाज और मैं तो इंशाल्लाह आपके साथ होंगे ही होंगे, लेकिन वी हैव few professor level mentors with us as well, and they will be taking your live sessions as well, including Professor Shamsunisa Satia, who's a professor at CPSP examiner as well, and she's a gynecological gynae professor at Al Nafis Medical College and Hospital, a well-known figure. एंड अनदर एक पेम्स की डॉक्टर ताश हैं हमारे साथ, वो भी प्रोफेसर हैं और पेम्स की हैं, और वो भी आपके लाइव सेशंस कुछ बीच में लेंगी और आपकी क्यूरीज को सॉल्व करेंगी। ठीक है, इसी तरह से जब हम आगे इंशाल्लाह वाइवा का कोर्स कंडक्ट करवाएंगे तो उसके अंदर भी हमारे ये जो प्रोफेसर हैं लेवल के मेंटोर्स जो हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, जो एक्चुअल CPSP के एग्जामिनर्स हैं, दे विल बी टेकिंग योर मॉक एग्जाम्स इन वाइवास एज वेल। सो ये एक न्यू चीज़ है जो कि आप लोगों को हम लोग तो आप वी आर देयर टू गाइड यू, और मी एंड डॉक्टर सुमेरा एजाज, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर प्रोफेसर्स भी आके बीच में आपके लाइव सेशंस लिया करेंगे, और ऑफ कोर्स उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और so inshallah when you're going to join, so you will see the difference. Again, how we are different कि हम आपको एक conceptual study से लेके and the clinical तक लेके जाएंगे, और उसके बाद आपके basics को बहुत improve करेंगे। Similarly, जब आपके हमारे professors different sessions लेंगे, तो you will also get a very good benefit, especially viva के point of view से written के जो examiner है, जो already CPSP के examiners हैं, professors हैं, वो आपको डिफरेंट तरह से एक केस को अप्रोच कराएंगे या आपके टॉपिक की अप्रोच कराएंगे। So I must say कि join us as soon as possible. If you have any queries, you can contact on the given numbers. And that's all from my side. And thank you so much for being with us today. Thank you so much. Okay, thank you, Dr. Amna. Take care, everyone. Thank you, Dr. Sumaira. Allah Hafiz.